हेलो स्टूडेंट्स, प्रोग्राम सीरीज में हम प्रीवियसली हमने कुछ प्रोग्राम देखे थे. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट न्यू प्रोग्राम्स. दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट डिफरेंट प्रोग्राम्स यूजिंग while loop and for loop. Actually, we are doing write a program to find out given number is prime or not. This is the program, and I have just copied the same program in this approach. Given number is prime or not. Now, what is the meaning of prime? Prime number are those number which is divided by itself or 1. That is the definition of prime number. That means 2, 3, 5, 7, 11, 13. These are the prime number. So the meaning is, if you are taking input any number, check it whether the number is prime or not. Now which logic we have to use it? Number 1. The very first thing, we are taking input number, one number initialized by 0, for loop. Now how will logic use it? The very simple thing, the remaining numbers are divisible, like 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, they all are divisible. Either they are divisible by 2 or 3 or 5 or 7 or 9. So which logic we have used it? For I in range 2 to num. What is the meaning of that? The meaning is the loop will start from 2 and it will be less than -1, because range always execute less than 1. So number is 5, so loop will execute 2 to 4. First thing. So if I input 5, then loop will execute 2 to 4. Then num, I have inputted 5. Clear? Num 5 mod 2. 5 mod 2 equals to 1. No. When you are dividing by 5 by 2, the remainder is 1. And here we are comparing with 0. So 1 equals to 0. This number is equal? No, not equal. The inside the loop, if condition will not execute it. Now the number will be increased. Now number is 3. Now condition is 3 is less than 5. Yes. 5 mod 3 equals to 0. 5 mod 3 is 2. 2 equals to 0. Is it true? No. Is it not true? So again loop will increase it. Now the value is 4. The condition is 4 less than 5. Yes. So 5 mod 4 equals to 0. No. Again remainder is 1. 1 equals to 0. Again the value is 5. Now the value is 5. I the value of 5 and num is 5. Condition is 5 less than 5. Condition is false. Again go to inside if count is 0. Yes, count is 0. Why? Because count value will not increase it in this situation. In case of 5. So loop will execute, run it, run 5, number is prime. Here is the thing. Now again if I inputting 8, so try run. Num count I don't think any other thing is there. So num is I am giving is 6. Num of this 6 there. Count 0. Loop will execute from 2 to 5. है ना?
loop will execute it 2 to 5. 2 to 5 है ना, that means 4 times will execute it. Count 0 I2 कंडीशन ट्रू है, यस. अब यहाँ कंडीशन ट्रू बनी, यार गोस कंडीशन यहाँ बनी, अब लूप के अंदर गया. नम इज 6 mod 2. 6 mod 2 की वैल्यू आएगी 0, तो 0 इक्वल्स टू 0, यस. काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, काउंट की वैल्यू 1 है. ब्रेक. नाउ व्हाट डज इट मीन? द मीनिंग ऑफ ब्रेक इज इट विल ब्रेक द लूप. तो लूप ब्रेक हो गया. व्हाट डज इट मीन? हमारा टारगेट क्या था? वी हैव टारगेट इज वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट. तो 6 ऑलरेडी डिविजिबल है, हमारा नंबर प्राइम नहीं है, कंफर्म हो गया, पर अभी हुआ नहीं, हमने अभी ब्रेक करा. काउंट इक्वल्स टू 0 है क्या? नो, काउंट 0 नहीं, काउंट की वैल्यू 1 हो गई. काउंट की वैल्यू कहाँ 1 हो गई? यहाँ पर. नेक्स्ट 6, काउंट की वैल्यू 1, आई की वैल्यू तो 3 हो जाएगी उस केस में 1. तो एल्स अब वो लूप ब्रेक हो गया तो काउंट की वैल्यू 0 है क्या? नहीं, द नंबर इज नॉट प्राइम. इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं. अगेन वी कैन कीप इट इन दिस. सिक्स इज नॉट ए प्राइम नंबर. तो लॉजिक क्या हुआ? लॉजिक ये हुआ कि आप जो नंबर दे रहे हैं उससे एक कम तक सारे नंबर्स को डिविजिबल दो. इससे उस नंबर को, पर्टिकुलर नंबर, वट एवर नंबर वी आर टेकिंग, लाइक 5 ले रहे हो तो 2 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, इस तरह से. या फिर एक लॉजिक ये भी है कि जो नंबर ले रहे हो उसके आधे नंबर तक डिवाइड करो. लाइक आप नंबर ले रहे हैं 10, तो 2 से डिवाइड करके देखो 10, 3 से डिवाइड करके देखो, 4 से डिवाइड करके देखो, 5 से डिवाइड करके देखो. इफ इट इज डिविजिबल दैट मीन्स द नंबर इज नॉट प्राइम. इफ इट इज डिविजिबल नॉट डिविजिबल दैट मीन्स नंबर इज प्राइम. सिंपल लॉजिक है ये. लॉजिक मैंने आपको लॉजिक भी बताया और एग्जीक्यूट भी करा. ये फॉर लूप के थ्रू है. वही चीज अभी जो मैंने आपको बोली वही आप इस तरह से देख सकते हो. ये यहाँ पर मैंने नम डिवाइड बाय 2 ले लिया. क्यों ले लिया? रीजन उसका है कि या तो नंबर आप हाफ नंबर तक डिवाइड करो या एक कम तक करो. तो ऊपर हमने एक कम तक करा, हियर वी हैव टेकन लेस देन 1. तो यहाँ हम एक ज्यादा ले रहे हैं, मतलब डिवाइड कर रहे हैं. ये डिफरेंस है. अब उसी चीज को हमको फॉर लूप से लेना है, तो इसको हम अभी देख लेते हैं. यही कंडीशन सेम प्रोग्राम वी आर यूजिंग. अब मैंने इसको कमेंट बॉक्स में दिया, आई हैव टेकन कमेंट यूजिंग व्हाइल लूप. अगेन एक नंबर ले लिया इनपुट, आई की वैल्यू 2. अब वही अपन सपोज करो हम उसको ले लेते हैं 7 ले लेते हैं. 7 इज प्राइम नंबर, तो लूप चलेगा 2 to 6 तक. 7 mod 2 0 है क्या? नहीं, बिकॉज इसकी वैल्यू 1 है, तो नॉट ए प्राइम नंबर आएगा नहीं, लूप में नहीं होगा टर्न में. आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3 लेस देन 7. कंडीशन ट्रू है. हाँ, वाइल लूप में थोड़ा सा इजी है समझना, है ना. तो 7 mod 3 इक्वल टू 0 है क्या? नहीं, तो इस कंडीशन में जाएगा ही नहीं. इस कंडीशन में फॉल्स. फिर आई की वैल्यू 4 हो गई. फिर लूप में गया 7 लेस देन 4, ट्रू है क्या? हाँ. फिर 7 mod 4, नहीं, ये भी नहीं आ रहा. फिर आई की वैल्यू 5, 7 mod 5, यहाँ नहीं. फिर 6, 7 mod 6, नहीं. फिर आई की वैल्यू 7 हो जाएगी, लेकिन लूप में नहीं जाएगा. 7 लेस देन 7, 7 लेस देन 7 में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. तो आई की वैल्यू आई इक्वल्स टू नंबर हो जाएगा, तो नंबर प्राइम हो जाएगा. और अगर वो किसी से भी डिविजिबल हो गया तो वो नॉट ए प्राइम नंबर आ जाएगा. ये सिंपलेस्ट अप्रोच मैंने बताई है. इंडेंटेशन अनएक्सपेक्टेड लगे, मतलब स्पेसिंग, डोंट गिव स्पेस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. 20 is not a prime number. अब प्राइम नंबर से ले लेते हैं. 7 प्राइम नंबर.
So I have explained with while loop as well as for loop, but exactly अगर आपको programming समझना, if you want to understand the programming, while loop is better. You know it step by step because देखो this is the initialization, this is the initial condition, and that is increment or decrement. ये एक तरीका रहता है, ये एक approach रहती है. This is the approach, this is the thing which you can get information. तो इस तरह से आप लॉजिक यूज कर सकते हो. ये मैंने प्राइम नंबर का बताया, और भी काफी सारे प्रोग्राम्स हैं जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ. अब नेक्स्ट प्रोग्राम जो आ रहा है वो जनरेट करना है प्राइम नंबर पूरे 100 तक. तो नेस्टेड लूप लगेगा, इसको हम कॉपी करते हैं और मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कैसे वर्क करेगा ये. पाइथन आइडियली प्राइम नंबर 1 to 100 2 to 100 2 to 100 using for loop. अब देखें, हम पहले इसको समझने की कोशिश करें. एरर्स आने की पॉसिबिलिटीज है इसमें, पर इसमें नहीं है ये. अब इसको समझते हैं हम क्या है. ये जो है 2 to 100 दैट मींस वी आर यूजिंग नेस्टेड लूप. नंबर 1 हम इसको नेस्टेड लूप में लिया है. अब नंबर की जगह हम एक काम करते हैं, नंबर ही रहने देते हैं. नंबर इन रेंज 1 to 101. तो लूप कितनी बार चलेगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये सोचने वाली. द फर्स्ट लूप विल एग्जीक्यूट इट 1 to 100 टाइम्स. इसको मैं लिख रहा हूं, लूप will execute 1 to 100 times, है ना. ये काउंट 0. फिर दूसरा जो लूप चलेगा वो 2 to नंबर बाय 2 plus 1. अब नंबर बाय 2 मतलब 101 में 2 का हम डिवाइड करेंगे तो 50 plus 1 मतलब वही 50 चलेगा, क्योंकि रेंज ऑलवेज लेस देन 1 चलती है. तो अंदर वाला पहले वाला लूप चलेगा 1 to 100, सेकंड वाला लूप चलेगा 2 to 50. अब नंबर मान लो नंबर 1 है, 1 में 1 का मॉड करेंगे तो 0 आएगा, तो काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, तो डिविजिबल है. फिर नंबर आया 2, 2 में अभी 2 का डिवाइड करेंगे, ये भी डिविजिबल है. फिर नंबर आया 3, 3 में 2 का मतलब वो नीचे वाले लूप की वैल्यू ऊपर वाले वैल्यू से डिवाइड हो रही है, 3/2. अब 3/2 नहीं हुआ एग्जीक्यूट, तो काउंट ब्रेक काउंट होगा नहीं, तो काउंट 0 है क्या, हाँ. नंबर 1 नहीं है क्या, हाँ. तो वैल्यू प्रिंट कर दो, तो 3 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. और ये एक साथ होगी. हमने लिखा ना एंड में क्या होता है कि स्पेसिंग देता है और एससीपी से सेपरेट करता है. ठीक है. फिर 4 5 आ जाएगा, 5 मॉड 5 में मॉड करेगा आप 2 का तो नहीं आएगा, तो फिर 5 में भी वही कंडीशन बनेगी. इसी तरह से लूप चलता रहेगा. आउटर लूप के एक बार के लिए इनर लूप पूरा एग्जीक्यूट होगा. The overall execution of inner loop, every iteration of outer loop, overall execution of inner loop. That is the main meaning. ये inner loop है, that is outer loop. ये inner loop है. तो ये अपन ने देखा है, मतलब नंबर की वैल्यू हम पहले वाले लूप में डिवाइड कर रहे हैं, जो भी आंसर आ रहा है उसके बाद चेक कर रहे हैं. और काउंट की वैल्यू 0 और नम नॉट इक्वल टू 1 है, तो वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. ये एंड से प्रिंट करिए. दिस इज द मेन थिंग, ये हमने देखी. प्राइम नंबर ये जो है इसमें ये फायदा है, ये दैट इज द मल्टीपल वैल्यू प्रिंटेड. इससे एक साथ कई वैल्यूज प्रिंट होती है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग.
and whenever you are printing multiple values, more than one values, then that means that will be print the answer inside the loop. And if you want to print only single value or one value, that means you can print that value outside the loop. That is the basic difference. ये basic difference होना चाहिए. आगे बढ़े हम. अब एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है. एक नंबर है, उसको ये चेक करना है कि वो आर्मस्ट्रांग नंबर है. अब आर्मस्ट्रांग नंबर होता क्या है, पहले तो हम उसको अंदर लेके फिर डिस्कस करें. व्हाट इज आर्मस्ट्रांग नंबर? प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रांग नंबर. अब आर्मस्ट्रांग नंबर क्या है ये अपन चेक करते हैं. तो देखो 1 370 371. पहले हम 3 का ले लेते हैं. थ्री इंटू 3 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 0 इंटू 0 इंटू 0. इसको हम कैलकुलेट करते हैं सब. 3 3 जा 9, 3 जा 27 प्लस 7 7 जा 49 प्लस 3 43 प्लस 0 इंटू 0 0. तो आपने 370 के फैक्टर्स करें और उसकी वैल्यू उसका क्यूब करके उसको सम करें तो वो भी 370 इक्वल ही आ रहा है. दैट इज द मीनिंग ऑफ आर्मस्ट्रांग नंबर, है ना. 371 का भी ऐसे ही आएगा. 371 के फैक्टर्स करेंगे हम तो उसमें भी ऐसे ही आएगा. 371 इक्वल्स टू वही 27 क्यूब करना है. फर्स्ट फाइंड आउट द क्यूब, देन क्यूब करने के बाद इसका आंसर जो आएगा वो दैट इज 371. तो 371 इक्वल्स टू 371. ये इस तरह से जो रहती है नॉर्मली. एक और नंबर होता 407. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अब आर्मस्ट्रांग नंबर हम सेव कर रहे हैं. पहले हम इसको चलाते हैं कि इंटर 370 आर्मस्ट्रांग नंबर. अगेन वी हैव टू रन इट. मैं फिर इसको आपको ड्राई रन करके बताऊंगा. आई विल एक्सप्लेन थ्रू ड्राई रन. 123 एग्जीक्यूट नहीं हुआ प्रॉपर, कुछ गड़बड़ दिखी. नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर. अब कैसे रन हो रहा है मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ. हमने जो लॉजिक दिया ये इसका इंडिविजुअल डिजिट निकालो, उसका क्यूब करो और उसका सम करो. समझना जाए. टेक ए फाइंड आउट इंडिविजुअल डिजिट. हाउ यू फाइंड आउट इंडिविजुअल डिजिट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अब हम देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं. TEMP टर्म नम सम आई नहीं लिया तो टेम्प ले लो. टेम्प ले लिया. और भी कोई आएंगे तो देखते हैं. अभी टेम्प वेरिएबल में कुछ भी असाइन नहीं है. अब मैं ड्राई रन कर रहा हूं आपको.
ड्राई रन का मतलब होता है कंप्यूटर में स्टेप बाय स्टेप कैसे एग्जीक्यूट होगा। नम की वैल्यू 370 दे दी, ये 370 सम की वैल्यू 0 है, अभी इसकी भी वैल्यू 0 मान लो और सम की वैल्यू 0, और अब नम की वैल्यू टेम्प हो गई तो मतलब 370 हो गई। अब नेक्स्ट उसमें चलते हैं हम, टेम्प ग्रेटर देन 0, लूप तब तक चलेगा जब तक कि उसकी वैल्यू 0 से ज्यादा होगी। द वैल्यू ऑफ लूप, द वैल्यू ऑफ टेम्प वेरिएबल एग्जीक्यूट ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा होगी है। अब डिजिट भी फाइंड आउट कर रहे हैं। डिजिट में क्या होगा, इंडिविजुअल डिजिट निकलेगी, और डिजिट जो निकलती है ना ऑलवेज, वो परसेंटेज मॉडुलस ऑपरेटर से निकलती है। तो टेम्प मॉड 10 इक्वल्स टू 0, तो अभी हमारा 370 हमने दिया, 370 में 10 का मॉड करेंगे तो 0 आएगा। तो 370 और डिजिट में 0 आया। अब हमने फिर क्या करा, इसका क्यूब करा, डिजिट का क्यूब करा और सम करा, मतलब उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सम इक्वल्स टू सम प्लस, तो 0 प्लस 0 का वो करेंगे तो सम भी 0 आएगा। अब टेम्प डिवाइड बाय 10, मतलब उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, टेम्प इक्वल्स टू टीएमपी डिवाइड। अब 370 में 10 का डिवाइड करेंगे तो 37 आएगा, तो 10 की वैल्यू अब 37 हो जाएगी। नम की तो 370 है ही, टेम्प इज 37, सम की वैल्यू अभी अपन ने 0 ले फाइंड आउट कर ली। अब सम की वैल्यू क्या होगी वो अपन देखते हैं, समझते हैं। तो 37 ग्रेटर देन 0 है, हाँ, डिजिट इक्वल्स टू टेम्प मॉड 10, तो टेम्प पे 37 में 10 का करेंगे मॉडुलस, तो 7 आएगा, आप देखेंगे तो डिजिट में 7 आ गया। फिर 7 में 3 का वो करेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7 दैट मीन्स 340, 340 में सम करेंगे तो 0, तो 343 आ गया। अब टेम्प की वैल्यू आपकी 37 में फिर 10 का डिवाइड करेंगे, तो 37 में 10 का डिवाइड करेंगे तो 3 ग्रेटर देन 0 है, हाँ, 3 में 10 का मॉड निकालेंगे। अब 3 में 10 का मॉड निकल नहीं सकता है, रीजन क्यों है, वो सिचुएशन ऐसी हो गई, 10 डिवाइड बाय 3, वो सिचुएशन ऐसी हो गई। तो आप डिविजिबल तो है नहीं, तो उसमें क्या होता है, जो भी आपका मेन नंबर रहता है, दैट नंबर इज द आंसर बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल। 3 उसका मॉडुलस निकल जाएगा, किसका, डिजिट का, तो 3 मॉडुलस निकला। अब आपको क्या करना है, अब आपने क्या करना है, वो निकाल लिया 3। अब 3 इंटू 3 इंटू 3 27 और 343 मतलब 370। अब 10 में 3 का डिवाइड करेंगे 10 से तो 0 आएगा, तो 10 0 से बड़ा है क्या, नहीं, ठीक है। अब नम इक्वल्स टू सम है क्या, नम की वैल्यू 370 है, आप देख ही रहो यहाँ पे, और इसकी वैल्यू भी 370 है, तो ये देख ही रहो दोनों में वही गया, तो दोनों में आंसर आएगा, तो ये आंसर आएगा 370 इक्वल्स टू 370। अपन इसको कर लेते हैं, 407 भी आता है, वही आंसर आता है, आर्मस्ट्रांग नंबर। 370 का एक बार और अगेन रन कर लेते हैं, 370, दैट इज द मीनिंग ऑफ आर्मस्ट्रांग नंबर। तो ये वाइल लूप से मैंने आपको आर्मस्ट्रांग नंबर बताया।
अब नेक्स्ट आर्मस्ट्रांग नंबर हो गया, ये 663। अब परफेक्ट नंबर ले लेते हैं। गिवन नंबर इज परफेक्ट और नॉट। गिवन नंबर इज परफेक्ट और नॉट। अब परफेक्ट नंबर क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। अब परफेक्ट नंबर क्या होता है, सपोज करो आपने 28 लिया, 28 एक परफेक्ट नंबर है। 28 के फैक्टर्स करो, फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 28। तो 1 2 4 7 14 ये फैक्टर्स का फाइंड आउट द फैक्टर्स। और फैक्टर्स जो कर सकते हैं ना हम, वो मॉड्यूलस ऑपरेटर से कर सकते हैं। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर प्ले ए वेरी वाइटल रोल। ठीक है, अब आप देखो 14 प्लस 7 21 प्लस 4 25 प्लस 2 27 प्लस 1 28। तो एक्चुअल नंबर और जो आपने करा है वो उसका सम, फैक्टर्स करा उसके सम इक्वल आना चाहिए, तो वो कहलाता आपका परफेक्ट नंबर। तो हम फैक्टर्स ही निकालेंगे। n इक्वल्स टू, ड्राई रन कर रहे हैं हम, n सम n सम i, या n i सम ले लो, i ले लो पहले और फिर सम ले लो। अब मान लो आपने 28 निकाला, अपन ने 28 नंबर ही दिया। लूप कहां से कहां तक चलेगा, i इन 1 से लेके 28 दिया तो 27 तक चलेगा लूप। i की वैल्यू 1, सम अभी है नहीं, लूप 27 तक चलेगा लेस देन 1। तो 28 में पहले 1 का फैक्टर निकाला तो 0 है। हाँ, सम 1 इक्वल्स टू i 1 प्लस i, मतलब सम अभी 0 है तो 0 प्लस 1 मतलब 1 हो गया। फिर सम इक्वल्स टू n दिख रहा है क्या, नहीं वो नहीं दिख रहा है। और ये वैसे भी थोड़ा सा इंटर कर देते हैं। अब i की वैल्यू 2 है, नम लेस देन 2 इक्वल्स टू 0, हाँ है, तो सम 1 इक्वल्स टू सम 1 प्लस i, मतलब अब 2 हो जाएगा, सम 3 हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर i की वैल्यू 3 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी 3 में। 28 में 3 का फैक्टर्स नहीं आएगा तो सम नहीं होगा। फिर 4 का फैक्टर्स आएगा तो 4 प्लस 3 मतलब 7। 4 पे काम नहीं करेगा, 3 पे काम नहीं करेगा, 3 पे 3 देगी, 4 पे 7 देगी, 5 पे काम नहीं करेगा, फिर 6 पे काम नहीं करेगा, 7 पे काम करेगा, तो 7 और यहाँ 14 हो जाएगा। फिर 8 9 10 11 12 13 पे काम नहीं करेगा। देखो ना, 28 में 8 का मॉड नहीं जाएगा, 28 में 9 का मॉड नहीं जाएगा, तो इस तरह से ये 14 पे काम करेगा और वहां पे आ जाएगा 28। फिर उसके बाद भी चलता रहेगा क्योंकि 27 तक चलाना। तो 28 मॉड 15, 28 मॉड 16, 28 मॉड 17 कुछ नहीं आएगा, तो वो आखिरी में उसकी वैल्यू 28 हो जाएगी i की वैल्यू। तो n इक्वल्स टू सम 28 है क्या, तो नंबर इज परफेक्ट। और अगर नहीं आएगा सम उसका वो परफेक्ट नंबर नहीं है। इसको अभी हम करके बता देते हैं, एग्जीक्यूट करके बता देता हूँ। नंबर इज परफेक्ट नंबर। तो इस तरह से अब अपन नॉट परफेक्ट का भी एक देख लेते हैं।
नॉट ए परफेक्ट। तो आप ये देख ले, अप्रोच जो है वो यही है। तो इस तरह से हम काफी सारे प्रोग्राम्स हमने देखे जो मेन इंपॉर्टेंट मैंने हर तरह से आपको बताया है और एग्जीक्यूट भी करा है और फाइंड आउट भी करा है। इससे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ये हम नेक्स्ट उसमें देख लेंगे। अभी मैंने आपको प्राइम नंबर, फैक्टोरियल, लूप, ये सारे प्रोग्राम्स बताए। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे पूछ सकते हैं।